हेलो दोस्तों, मैं समरन काली स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसकी हमें प्रतीक्षा थी कि एलिमेंट्री थ्योरम। ओके। तो वो एलिमेंट्री जो थ्योरम है उसको हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसका प्रूफ जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में लेने वाले हैं। हम ओनली थ्योरम लेंगे और उसके रिगार्डिंग डेफिनेशंस होंगे, उससे कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट भी हम पढ़ने वाले गाइज। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो please guys subscribe to my channel and press the bell icon so that you will get the latest update of videos guys. So let's start the video. So firstly we will take the definition. What is the definition guys? I think the definition was already covered in the last video, but we will see it. Let small v belongs to capital V is not equal to 0. The unique polynomial mv of x satisfying the conditions of above lemma is called the order of V. Yes, ऑर्डर ऑफ वी, दैट मीन्स इस एलिमेंट वी की ऑर्डर किसे कहते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल होगी एम वी ऑफ एक्स, वो पॉलिनोमियल क्या करेंगी, अबो लेमा, मीन्स प्रीवियस वीडियो में जो लेमा था लास्ट वाला, उस लेमा की कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम उस वेक्टर वी को क्या कहेंगे, यूनि उस वेक्टर वी को हम कहेंगे कि इट इज द ऑर्डर ऑफ वी, ऑर्डर ऑफ वी। एंड दैट पॉलिनोमियल एम वी ऑफ एक्स, ऐसी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होंगी एम वी ऑफ एक्स विच सैटिस्फाइज द अबो लेमास कंडीशन। सो दैट पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ वी कहेंगे। ओके। एंड दैट पॉलिनोमियल इज यूनिकली डिटरमाइंड। ओके। एंड एज द क्यू ऑफ एक्स विथ लीडिंग कोएफिशिएंट्स 1, उसके लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होंगे, 1 होंगे, ऑफ द लीस्ट डिग्री सच दैट दिस क्यू ऑफ टी ऑफ वी इज इक्वल टू 0। ओके। सो नेक्स्टली द लेमा गाइस, let's see, very important lemma. Let this it is known as guys, it is a cyclic subspace generated by V. Okay, it is known as cyclic subspace. Okay, subspace generated by V, subspace generated by V, generated by small v. Okay, so ये cyclic subspace होता है generated by V. Be a non-zero cyclic subspace of capital vector space V and let T to the base this V. That means the linear transformation T with respect to the cyclic subspace generated by V. That means it is known as the restriction. Okay, restriction of linear transformation T to the subspace V. So this notation can be read as this restriction of T to the subspace V. ऐसा हम इसको रीड कर सकते हैं, restriction of T to the subspace V. Then the order mv of x of the V is equal to the minimal polynomial of restriction of T to the subspace V up to the constant factor. So constant factor का डिफर होगा किसमें, मिनिमल पॉलिनोमियल में एंड mv ऑफ x में। तो कांस्टेंट फैक्टर का डिफर होना मतलब क्या, हम क्या दिखाएंगे गाइज, mv of x divides some another polynomial and that another polynomial again divides the mv of x. That means there is a difference between the constant factor guys. Okay, so this is the theorem. Now we will see the proof. Let this V be the non-zero cyclic subspace of V. Therefore, a polynomial f of x belongs to the capital F of x has the property that f of t of V is equal to 0. ये property है. If and only if f of linear transformation T to the subspace V, that is a restriction of T to the subspace V is equal to 0, because this subspace generated by V is the subspace and which is generated by these elements V, T of V, T square of V and so on, and therefore this f of t into t is equal to t into f of t. That means it will the commute. Moreover, this f of t into V is equal to f of this t of this is the restriction of t to the subspace V of V. So this is the property. Now letting q of x be the minimal polynomial of restriction of t to the subspace V. q of x हमने minimal polynomial assume की. We have
हमें क्या मिलेगा, इसको एक अगर एज्यूम करेंगे तो हमें मिलेगा एम वी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। यस, एम वी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो ऑन दी सबस्पेस जनरेटेड बाई वी एंड हेंस इससे क्या होगा, एम वी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो मतलब कोई तो ऐसी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगी। ओके, सपोज दिस एम वी ऑफ टी ऐसा लिखा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, दैट इज एम वी ऑफ टी is equal to some polynomial q of x. Okay, some polynomial q of x into some q dash of x there exists. Okay, q dash of x. That means guys, this mv of t divides q of x, or sorry, q of x divides the mv of t, mv of x. Okay, so this is the dividation. That means the q of x polynomial, minimal polynomial will divide the mv of x. अब हम कॉन्वर्सली लेंगे, कॉन्वर्सली मीन्स हम क्या दिखाएंगे कि mv ऑफ x जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ वेक्टर स्पेस v डिवाइड द मिनिमल पॉलिनोमियल। नाउ कॉन्वर्सली q ऑफ t ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। ओके, q ऑफ t ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो लिया तो कोई तो कांस्टेंट फैक्टर होगा ना, दैट मीन्स इसकी डिवीजन जीरो है तो कोई तो कांस्टेंट फैक्टर होगा, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ओके, सो दैट दिस mv ऑफ x डिवाइड्स द q ऑफ x, ये इसको डिवाइड करेगा। दिस आर द बेसिक थिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है ऐसा। एंड हेंस mv ऑफ x एंड q ऑफ x डिफर बाय द स्केलर फैक्टर। अगर दोनों हर एक को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों हर एक को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, देयर इज सम स्केलर फैक्टर। सपोज हमने कहा q डैश इज अ स्केलर फैक्टर बिटवीन दिस mv ऑफ x एंड q ऑफ x। ओके, नाउ हमने जो टी रेस्ट्रिक्शन टू द वी लिया था उसको कैसे, उसके ऊपर एक नोट है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है देखो। द रेस्ट्रिक्शन टी डब्ल्यू, ओके, ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी टू द टी इनवेरिएंट सबस्पेस डब्ल्यू। ओके, इसका मतलब क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ओके, टू द टी इनवेरिएंट सबस्पेस डब्ल्यू। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी टू द टी इनवेरिएंट सबस्पेस डब्ल्यू, ये क्या होता है, इट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इट इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TW and which is belongs to L of WW defined by TW of W is equal to T of W. So this is the restriction of linear transformation T to the T invariant subspace W guys. Okay, and for all W belongs to the capital W. So this is the note. Now next lemma, let m of x be the minimal polynomial of t on v. m of x क्या है, एक मिनिमल पॉलिनोमियल है किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की, एंड विच इज डिफाइंड ऑन द वेक्टर स्पेस v फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, द ऑर्डर mv ऑफ x डिवाइड्स द m ऑफ x। ये जो ऑर्डर है mv ऑफ x वो किसको डिवाइड करेगी, m ऑफ x को डिवाइड करेगी। सो ऐसा थियरम है ये। देखो ये लेमा जो है ना प्रीवियस लेमा में भी इंक्लूड है, दैट मीन्स वन पार्ट जो है इसका एम वी ऑफ एक्स डिवाइड्स एम ऑफ एक्स, तो उसका प्रूफ इसमें है। तो वी हैव एम ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो ऑन वेक्टर स्पेस वी, हेंस एम ऑफ टी ऑफ वी अगर वी अप्लाई करेंगे दैट इज अगेन इक्वल टू जीरो। अगेन इक्वल टू जीरो है तो उधर कुछ तो एक स्केलर फैक्टर होगा ना, दैट इज हेंस द रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द अबो लेमा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम स्केलर फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, mv of x divides the m of x, okay, divides m of x, hence the lemma. Now जिसके हमें बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी वो ये थ्योरम है एलिमेंटरी डिवाइजर थ्योरम गाइस। ओके, सो एलिमेंटरी डिवाइजर थ्योरम इसका सिर्फ हमने इधर स्टेटमेंट लिया है, उसके ऊपर से हम कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे, कुछ रिजल्ट्स उसके ऊपर से आएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे द प्रूफ ऑफ एलिमेंटरी डिवाइजर थ्योरम। तो उधर इसका थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं वो उसको लगने वाली है। ओके, सो हमारा ये क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है इधर। लेट्स सी, लेट कैपिटल टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी वी वेयर वी इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एन आर्बिट्ररी फील्ड कैपिटल एफ एंड दिस वी इज नॉन एम्प्टी, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस वी इज नॉट इक्वल टू जीरो गाइस। ओके, देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर्स, ऐसे नॉन जीरो वेक्टर्स एग्जिस्ट होंगे किसमें, वेक्टर स्पेस वी में। कौन कौन से होंगे वो, v1 v2 to vr whose orders are powers of prime polynomials। उसकी जो ऑर्डर्स होंगी वो क्या होंगी,
which are the powers of prime polynomials in f of x. Okay, prime polynomial in f of x. So ये जो वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस वी के वी में जो वेक्टर्स एग्जिस्ट हो रहे कौन कौन से v1 v2 टू vr, उसकी जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स कौन होगी, विच आर दी पावर्स ऑफ प्राइम पॉलिनोमियल्स इन एफ ऑफ एक्स। कौन कौन सी है देखो, p1 of x raised to power e1, okay, it is a order of v1, and pr of x raised to power er, it is the order of vr. That means this p1 of x, p2 of x, and pr of x are the prime polynomials in f of x, guys. Okay, and are such that v is the direct sum of cyclic subspaces vi, and जो वेक्टर स्पेस v है वो क्या होगी, इट इज द डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक सबस्पेसेस। ये जो साइक्लिक सबस्पेसेस हम जनरेट कर रहे हैं ना, उन सबकी क्या होगी, वो डायरेक्ट सम होगी। तो दैट इज v इज इक्वल टू cyclic subspace generated by v1, the direct sum with the cyclic subspace generated by v2, the direct sum with up to the direct sum cyclic subspace generated by vr. Okay, so the number of summoned small r is uniquely determined, and the order pi of x raised to power ei of the vectors vi are uniquely determined up to a rearrangement. That means guys, ये जो v1 v2 and vr है, these are the summoned of with r, these are the uniquely determined. That means ये जो सबस्पेसेस जनरेटेड बाय v1 v2 एंड vr है, ये क्या है, यूनिकली डिटरमाइंड है। दैट मीन्स देर इज नथिंग इक्वल टू दिस v1 v2 एंड vr। ओके, दीज आर दी यूनिकली, एंड हुज ऑर्डर्स, देयर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स क्या है उसकी, पी ऑफ एक्स रेज टू पावर ई आर, ये भी क्या है, यूनिक ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, let capital T belongs to L of VV, the set of prime powers, the set of prime powers P1 of x raised to power E1 to PR of x raised to power ER with repetition। मीन्स इसमें क्या होगी, रिपीटेशन भी हो सकती है। सपोज प्राइम पॉलिनोमियल है, सपोज हमने एक ऐसी पॉलिनोमियल ली x माइनस वन, ओके, इट इज अ प्राइम पॉलिनोमियल, लेकिन हमने उसकी पावर ली रेस्ट टू पावर 2, रेस्ट टू पावर 3, 4, 5 एंड सो ऑन, देन द पावर्स अगेन रिपीट, ओके, if necessary, is called a set of elementary divisors of t. So ये जो powers है p1 of x raised to power e1 to pr of x raised to power er, इस सेट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंटरी डिवाइजर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t। सो एलिमेंटरी डिवाइजर, इसने अगर पूछा तो एलिमेंटरी डिवाइजर्स क्या होते हैं, इट इज द सेट ऑफ प्राइम पावर्स p1 of x to pr of x with repetition। okay, these are the elementary divisor। Now nextly we will see the remark. It's the remark. So what is the remark? The order p1 of x raised to power e1 to p2 of x raised to power e2 to pr of x raised to power er may contain the repetition। इसमें क्या होगी, रिपीटेशन भी हो सकती है। So the uniqueness part of the theorem in more detail states, the uniqueness part जो है वो मोर डिटेल में क्या कहेंगे, देखो यूनिकनेस कैसे, दैट मीन्स दीज आर द यूनिक। हमने क्या कहा कि जो सबस्पेस जनरेटेड बाय v1 v2 एंड vr, ये क्या है, यूनिक है। तो यूनिकनेस पार्ट कैसे है वो देखो इधर। सो v इज इक्वल टू, it is the direct sum of v1 dash to vs dash, okay, it is the direct sum of subspace generated by v1 dash to vs dash for some other non-zero vectors vi dash। that means हमने ऐसा एज्यूम किया कि v1 के अलावा v1 dash भी ऐसा वेक्टर सबस्पेस जनरेट हो रहा है जो कि इक्वल है किसके साथ, v1 के साथ इक्वल है, with prime power q1 of x raised to power f1, qs of x raised to power fs, then r is equal to s। r की वैल्यू क्या होगी, s होगी, एंड द सेट्स ऑफ प्राइम पावर p1 of x raised to power e1 to pr raised to power er and q1 of x raised to power f1 to qr of x raised to power fr are the same up to a rearrangement। ये क्या होगी, सब सेम होगी। दैट मीन्स p1 of x raised to power e1 is equal to q1 of x raised to power f1। तो इससे क्या प्रूव हुआ, दैट दिस इज द यूनिक। ओके, v1 v2 and vs। Now next definition, the form of matrix of linear transformation T with a given set of elementary divisors is called a rational canonical form of T। तो rational canonical form हम किसे कहेंगे,
ऐसा मैट्रिक्स होगा, द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का मैट्रिक्स होगा विथ ए सेट ऑफ एलिमेंटरी डिवाइजर। ओके, तो उसमें कौन से सेट होंगे, एलिमेंटरी डिवाइजर्स के सेट होंगे, एंड दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द रैशनल कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। सो ये कैसे निकालते हैं हम बाद में लेने ही वाले हैं। ओके, वन बाय वन हम अब रिजल्ट्स देखेंगे बाय यूजिंग द लेमा। ओके, सो फर्स्ट रिजल्ट हमें आएगा कंपेनियन मैट्रिक्स का रिजल्ट है ये गाइस। ओके, so let p of x is equal to x raised to power d minus x d minus alpha d minus 1 into x raised to power d minus 1 minus 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 alpha 0, and this alpha I belongs to capital F, be a prime polynomial। ये क्या है, p of x be the prime polynomial in capital F of x, and suppose this subspace generated by V, cyclic subspace generated by V is the cyclic subspace of V। ये किसका cyclic subspace है, वेक्टर स्पेस V का, एंड दैट P of x is the order of V। P of x क्या है, V की क्या है, ऑर्डर है। देन द मैट्रिक्स ऑफ restriction of T to the subspace V with respect to the basis V T of V to T raised to D minus 1 of V of the cyclic subspace generated by V is। तो इसका मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ए पी ऑफ एक्स, ए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो फर्स्टली जीरो लेंगे, फर्स्ट रो में सब जीरो होंगे, और लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो क्या होगा, अल्फा नॉट होगा, वो क्या होगा, अल्फा नॉट होगा। लेकिन आपकी पी ऑफ एक्स जो प्राइम पॉलिनोमियल है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए गाइस। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का वो जीरो होगा, सेकंड भी जीरो, थर्ड भी जीरो, और लास्ट वाला क्या होगा, अल्फा नॉट होगा। ओके, देन अब सेकेंड रो में क्या होगा, आपको वन लेना है, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट होगा वन, देन सेकेंड इज अ जीरो अप टू जीरो, एंड लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, अल्फा वन होगा। अब क्या करना है, वन को शिफ्ट करते जाना है एक एक प्लेस। ओके, एक एक प्लेस शिफ्ट करेंगे, सो फर्स्ट इधर जीरो रहेगा, देन इधर वन रहेगा, देन जीरो 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 जीरो, एंड लास्ट टर्म को क्या रहेगा, अल्फा टू। सो ये सब वन शिफ्ट करते 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 लास्ट रो में वन कहाँ पर आएगा, ये अल्फा डी माइनस वन लास्ट में आएगा, अल्फा रेस टू सॉरी अल्फा डी हमारे पास नहीं है, तो अल्फा डी माइनस वन लास्ट टर्म होगी, एंड इधर क्या होगा, वन होगा गाइस। ओके, सो अब रहता है कि ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, सो ऑर्डर इधर ही आती है, एक्स रेस टू पावर अगर टू रहा तो टू बाई टू का मैट्रिक्स जनरेट होगा। ओके, एक्स रेस टू वन रहा तो वन बाई वन का ही मैट्रिक्स जनरेट होगा। ओके, सो दिस इज द लेमा गाइस, इट इज द विदाउट प्रूफ लेमा। नाउ द definition, the matrix AP of x is called the companion matrix of the polynomial P of x। so इस मैट्रिक्स जो है रिप्रेजेंट किया है हमने AP of x, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द कंपेनियन मैट्रिक्स, इट इज द कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल P of x। तो देखो अब एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड द कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर द रैशनल फील्ड। ओके, हमें क्या करना है, कंपेनियन मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब देखो इसके ऑर्डर क्या है, टू है, तो टू बाई टू का मैट्रिक्स जनरेट होगा। सो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बी द गिवन पॉलिनोमियल। सो इट कैन बी रिटन एज, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें अगर लिखना है, दैट मीन्स एक्स रेस टू डी माइनस अल्फा डी माइनस वन इंटू एक्स रेस टू डी माइनस वन, ऐसा। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्टली एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, देन इंटू एक्स नहीं है ना, तो माइनस माइनस जीरो इंटू एक्स ऐसा लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्लस वन को कैसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स माइनस वन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। therefore the companion matrix is, so इसका companion matrix कैसे होगा, AP of x is equal to जीरो अल्फा नॉट वन एंड अल्फा वन। दैट मीन्स फर्स्ट में जीरो रहेगा और लास्ट वाला एलिमेंट क्या रहेगा, अल्फा नॉट। लेकिन अब देखो इधर टू बाई टू का ही मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट आएंगे, दो ही एलिमेंट आएंगे। सो हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे और अल्फा नॉट लेंगे। ओके, वन बाय वन का अगर रहा एक्स माइनस वन या फिर एक्स प्लस वन अगर रहा, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस वन इंटू, okay, sorry, minus 1 into minus x, okay, and then minus minus 1 minus minus 1, ये क्या हुआ, वन बाय वन का मैट्रिक्स हुआ। सो वन बाय वन के मैट्रिक्स में इसमें अब क्या लेंगे, आप सिर्फ अल्फा नॉट ही लेंगे, अल्फा नॉट ही लेंगे, दैट इज माइनस वन, एंड विच इज द कंपेनियन मैट्रिक्स। ओके, नाउ सो दिस इज जीरो एंड अल्फा नॉट। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म में वन लेते हो, देन नेक्स्ट जीरो जीरो लेते हो, लेकिन हमारे पास क्या है, दो टू बाई टू का ही है,
तो इधर क्या आ जाएगा, अल्फा 1 ही आएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ अल्फा नॉट एंड अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ से उठा लो। देयरफॉर ए the companion matrix of A to the polynomial x square plus 1 is equal to 0. अल्फा नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1 है, so this is -1 and then 1 as it is, alpha 0 is, sorry, alpha 1 is 0, so therefore it is a 0 and which is the companion matrix, right? Okay, it's a very simple. Now अगेन द थ्योरम। अब देखो ये कंपेनियन मैट्रिक्स ही है, लेकिन कुछ पावर्स अगर एक्स्ट्रा रहेगी, रेस्ट पावर ब्रैकेट्स की पावर रहेंगी, पॉलिनोमियल की पावर्स अगर रहेंगी, तो उसके लिए ये कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो लेमा डबल स्टार, वो लेमा स्टार था, इन दोनों लेमास को हमें क्या करना है, यूज करना है आगे, इसलिए मैंने स्टार एंड डबल स्टार दिया है। ओके, सो लेट p of x is equal to x raised to power d minus alpha d minus 1 into x raised to d minus 1 minus 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 alpha 0 and alpha I belongs to capital F, and these cyclic subspace generated by V such that the order of V is p of x raised to power e. Order of V क्या रहेंगी अब, p of x raised to power e, that means e powers रहेंगी for some positive integer e, then the matrix of restriction t to the subspace V with respect to the basis p of t raised to power e minus 1 of V t into p of t raised to power e minus 1 of V up to so on t raised to d minus 1 p of t raised to power e minus 1 of V, p of t raised to power e minus 2 of V, then t into p of t raised to power e minus 2 of V up to dash 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 t raised to power d minus 1 p of t raised to power e minus 2 of V and up to dash 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 v t of V up to t raised to d minus 1 of V. So it is the basis, okay, and that matrix is a b 0 0 0 0 a b 0 0 0 and 0 0 0 0 0 ए बी है ना, जैसे वन ट्रांसफॉर्म करते थे, ए बी इधर ट्रांसफॉर्म करते जाना है, लास्ट में इधर बी आएगा, इधर ए रहेगा, ओके, एंड लास्ट टर्म में क्या रहेगा, ओनली ए रहेगा, बी नहीं रहेगा, ओके, एंड दीज आर दी ई ब्लॉक्स गाइस, ओके, ई ब्लॉक्स, ओके। सपोज अगर इसकी पावर ए पी ऑफ एक्स रेज़ टू पावर है ना ई, तो ये अगर 2 रहा तो आपको 2 ब्लॉक्स बनानी, दैट मीन्स ये फर्स्ट ब्लॉक तो हो जाएगा ए बी का एंड दिस इज द सेकेंड ब्लॉक हो जाएगा, ओके, वेयर ए इज द कंपेनियन मैट्रिक्स, ए क्या होगा, कंपेनियन मैट्रिक्स, दैट इज ए पी ऑफ एक्स जैसे हमने पहले लिया था, एंड बी इज द डी बाई डी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स कैसे होगा, सब 0 0 होंगे, लेकिन राइट कॉर्नर पर ओनली 1 रहेगा, मैट्रिक्स के राइट कॉर्नर पर 1 रहेगा, बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरोज होंगे, ओके, दिस इज द बी मैट्रिक्स। तो हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। So what is the proof? Proof is very simple guys. Let p of x is equal to that polynomial x raised to d minus alpha d minus 1 into x raised to d minus 1 minus 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 alpha 0, and this alpha I belongs to the capital F, and let this subspace generated by V be the cyclic subspace such that order of V is p of x raised to power e, okay, then therefore the number of candidates given in the statement of lemma, अब जो number of candidates है given in the statement of lemma for the basis element of V is d into e, तो basis element कितने हो गए, d into e हो गए, d क्या होगी, इसकी पावर होगी, देखो ये d and e is the power of degrees, okay, that is the degree, so d into e, that is of degree of p of x raised to power e, degree of p of x raised to power e, so इतने सारे elements होंगे उसमें, so therefore the vectors will be a basis of V if we can show that they are linearly independent। हमें तो पता है अगर ये बेसिस वेक्टर्स रहेंगे तो वो क्या होंगे, वो सारे linearly independent होंगे। However, a relation of linear dependence would produce a non-zero polynomial g of x such that g of t of v is equal to 0। अगर कोई linear dependence रहा तो क्या होगा, that non-zero polynomial g of x such that this g of t of v is equal to 0 ऐसा एग्जिस्ट होगा, एंड इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स लेस देन रहेगी किसके बराबर, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स टू पावर ई। लेकिन हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा उस केस में, कौन सी केस में, लीनियर डिपेंडेंस वाली केस में, है ना, लीनियर डिपेंडेंस अगर रहा तो ये डिग्री लेस देन रहेगी, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा किसको, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द assumption दैट ऑर्डर ऑफ v इज p ऑफ x टू पावर e, लेकिन ये क्या रही, p ऑफ x टू पावर e से लेस आ रही है, लेस नहीं चाहिए हमें, उसके इक्वल चाहिए, तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी।
सो हेंस द ऑर्डर ऑफ v इज द p ऑफ x रेज टू पावर e रहेंगी। ओके, अब हम मैट्रिक्स कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन टी टू द सबस्पेस वी विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस। गिवन बेसिस है वो बेसिस ऊपर वाला, वो बड़ा वाला बेसिस उसके साथ। so we see that t maps each basis vector onto the next one except for the basis vectors। कौन कौन से बेसिस वेक्टर्स नहीं आएंगे इसमें, देखो t रेस टू d माइनस वन p ऑफ t रेस टू e माइनस वन ऑफ v, t रेस टू d माइनस वन p ऑफ t रेस टू पावर e माइनस टू ऑफ v एंड t रेस टू d माइनस वन ऑफ v। इन सारे वेक्टर्स के लिए, इन सारे वेक्टर्स के लिए t मैप्स नहीं होगा। ओके, फॉर दीज वेक्टर्स वी आउट। अब हम इसमें वी सी दैट, ये देखो इधर ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। टी मैप्स ईच बेसिस वेक्टर ऑन टू द नेक्स्ट वन, ईच बेसिस वेक्टर ऑन टू द नेक्स्ट वन एक्सेप्ट फॉर द बेसिस वेक्टर्स। कौन कौन से बेसिस वेक्टर नहीं आएंगे, ये कंडीशन किस किस के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, इस वेक्टर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तो फॉर दिस वेक्टर्स हम टी अप्लाई करेंगे इस पर, देखो क्या होगा, टी ऑफ टी रेस्ट फर्स्ट वेक्टर लेंगे हम टी रेस्ट टू डी माइनस वन पी ऑफ टी रेस्ट टू पावर ई माइनस वन ऑफ वी। सो ए अगर वेक्टर है, इट इज अ बेसिस वेक्टर है, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। ओके, सो लीनियर कॉम्बिनेशन विथ बेसिस वेक्टर के साथ ही ले सकते हैं। सो फर्स्ट लेंगे अल्फा नॉट इज द कांस्टेंट एंड देखो इस पर अप्लाई कर रहे पी ऑफ टी रेस्ट टू पावर ई माइनस वन ऑफ वी के साथ। ओके, देन प्लस अल्फा वन इंटू p of t raised to power e minus 1 and t raised to t into p of t raised to power e minus 1, t एक एक ऐड होते जाएगा एंड लास्टली मिलेगा हमें अल्फा d माइनस वन t raised to d माइनस वन p of t raised to e माइनस वन ऑफ v। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। देन सिंस p of t into p of t raised to e minus 1 of v is equal to 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, बिकॉज p of t into p of t raised to e minus 1, ये देखो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा p of t raised to power e, लेकिन p of t raised to power e, p of x raised to power x raised to power e, ये क्या है, इट इज द ऑर्डर। सो ऑर्डर है तो वो इसके ऊपर v अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट अगला वाला क्या है, टी रेस टू डी माइनस वन पी ऑफ टी रेस टू पावर ई माइनस टू ऑफ वी, इसके ऊपर टी अप्लाई करेंगे। हमें अगेन इसको अगर और लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज अल्फा जीरो इंटू पी ऑफ टी रेस टू ई माइनस टू ऑफ वी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, अल्फा वन इंटू टी इंटू पी ऑफ टी रेस टू पावर ई माइनस टू ऑफ वी अप टू सो वन, कहाँ तक जाएगा, अल्फा डी माइनस वन पी ऑफ टी रेस टू पावर ई माइनस टू ऑफ v। ओके, एंड प्लस एक टर्म इसमें ऐड होंगी, वो टर्म है p ऑफ t इंटू सॉरी p ऑफ t रेस्ट टू पावर e माइनस वन ऑफ v, p ऑफ t रेस्ट टू पावर e माइनस वन ऑफ v। दैट मीन्स दिस वेक्टर, ये प्रीवियस वेक्टर को एक एक वेक्टर ऑन हो रहे हैं ना, एक वेक्टर क्या हो रहे हैं नेक्स्ट वेक्टर पे ऐड हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो हम जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे इसका, तो ये प्रीवियस वाले ये सारे थे, ये सारे थे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, लेकिन अब जो ये है ना ये भी ऐड हो जाएगा ना इसमें, तो ये भी ऐड हो जाएगा p ऑफ t रेस्ट टू पावर e माइनस वन, लेकिन इसमें t रेस्ट टू d माइनस वन नहीं लेंगे। ओके, सिंस p ऑफ t इंटू p ऑफ t रेस्ट टू e माइनस टू ऑफ v इज इक्वल टू, ये देखो प्लस वन माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस वन, सो p ऑफ t रेस्ट टू पावर e माइनस वन ऑफ v एंड एक्सेट्रा सो वन, ये सारे के लिए सारे टर्म्स के लिए लेंगे अप टू t रेस्ट टू d माइनस वन ऑफ v तक। So therefore, the part of the matrix involving the columns labeled by p of t raised to power I of v to t raised to power d minus 1 p of t raised to I v p of t raised to I minus 1 v up to so on t raised to d minus 1 p of t raised to I minus 1 of v is given below। अब देखो मैट्रिक्स ब्लॉक मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे हम। सो ब्लॉक मैट्रिक्स पहले कौन सी टर्म होगी, ये वाली टर्म होगी p ऑफ t रेस टू i ऑफ v टू यहाँ तक t रेस टू d माइनस वन p ऑफ t रेस टू पावर i ऑफ v। सो दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ओके, सेकेंड में ये वाला। सो सेम थिंग इधर यूज करेंगे, फर्स्ट ब्लॉक में ये फर्स्ट वाली आएगी। ओके, एंड सेकेंड जो ब्लॉक है इसमें सेकेंड पॉलिनोमियल। यस, नाउ अब जो है
इसका और इसका रिलेशन वो होगा कंपेनियन मैट्रिक्स। वो क्या होगा? कंपेनियन मैट्रिक्स। तो कैसे होता है? 0 0 0 2 अल्फा नॉट, 1 0 2 अल्फा 1, 0 1 0 2 अल्फा 2 एंड 0 0 0 लास्टली 1 2 अल्फा d माइनस 1। ये कंपेनियन मैट्रिक्स होगा। ओके, एंड देन इसका अगर इसके साथ लेंगे ओके मैट्रिक्स रिलेशन, तो हमें क्या मिलेगा? इधर ओनली 1 मिलेगा राइट कॉर्नर में, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। और इधर इसका और इसका बिल्कुल अपोजिट है। ओके, ये सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। और लास्ट में अगेन कंपेनियन मैट्रिक्स मिलेगा, सेम कंपेनियन मैट्रिक्स। ओके, सेम कंपेनियन मैट्रिक्स दैट इज 0 to alpha naught, 1 0 to alpha 1, 0 0 0 1 to alpha 2 and 0 0 0 1 अल्फा d माइनस 1। ये क्या मिलेगा? कंपेनियन मैट्रिक्स मिलेगा आगे। Hence the lemma. Okay, now nextly we will see the definition. So what is the definition? The DE by DE matrix given in the above lemma is called the companion matrix of the polynomial p of x raised to power e। अब e पावर में हम कंपेनियन मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। देखो, so what is the companion matrix of x square plus 1 bracket square over the rational field? अब देखो x square plus 1 था पहले, अब इसका क्या है? पावर है ना, रेस्ट पावर 2। तो इसके लिए ये फॉर्मूला अबो लेमा का यूज करेंगे। So let p of x is equal to x square plus 1 be the given polynomial. It can be written as in x square plus 1 like this, x square minus 0 into x minus minus 1 for the companion matrix. Therefore the companion matrix is, फर्स्ट में हम क्या लेते हैं? ये 4 ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे हम। ओके, 4 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे हर एक मैट्रिक्स के लिए, हर एक पॉलिनोमियल के लिए 4 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। फर्स्ट ब्लॉक में आप क्या लेंगे? कंपेनियन मैट्रिक्स लेंगे। किसका लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कंपेनियन मैट्रिक्स लेंगे। वो हमें पता है 0 माइनस 1 1 0 रहता है बाय प्रीवियस 1। एंड देन इधर भी क्या लेंगे? ब्लॉक, डायगोनल ब्लॉक पर हम कंपेनियन मैट्रिक्स ही लेंगे, 0 माइनस 1 1 0। एंड इधर सारे 0 होंगे और इधर क्या होगा? राइट कॉर्नर में 1 होगा, बाकी के सारे 0 0 होंगे, लेकिन सब क्या होंगे? 2 by 2 मैट्रिसेस होंगे। चारों के चारों ब्लॉक्स 2 by 2 मैट्रिसेस होंगे गाइस। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सबको ये समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड द कंपेनियन मैट्रिक्स। ओके, so thank you for watching the video. We will meet into the next video. अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे गाइस। ओके, थैंक यू।